Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, children. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. All of you, please mute your mic. Mute your mic. All of you, please mute your mic. बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? Yes, Board ma'am. is visible. Good morning, to all ma'am. of you. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Board is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or children, lesson 19 is your portion, test portion, lesson 19. Okay, ma'am. ओके जो संडे को जो ऑनलाइन टेस्ट होगा सोशल साइंस का चैप्टर लेसन 19 इज योर ऑनलाइन टेस्ट पोर्शन. Okay, कोई ma'am. प्रॉब्लम है आपको? Okay, ma'am. No, ma'am. लेसन 19 इज योर टेस्ट पोर्शन. एनी प्रॉब्लम, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्लास ग्रुप में हम आज उसको डाल देंगे और स्नैप होमवर्क पर भी लिख देंगे. अगर किन्हीं को एनी प्रॉब्लम है तो आप हमसे अभी डिस्कस कर सकते हैं. यू मे डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding the lesson 19. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now join the class with your copy. Open your copy. Open your copy and write date. And topic MCQ of lesson 12. MCQ of lesson 12. और कल क्लास में एक रिवीजन टेस्ट होगा लेसन 19 का. लर्न लेसन 19 ये आपका होमवर्क रहेगा. लर्न लेसन 19 फॉर रिवीजन टेस्ट टुमारो. ओके, दिस इज योर होमवर्क. इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे. कल हम लोग रिवीजन करेंगे लेसन 19 का, क्योंकि ऑन डे आफ्टर टुमारो लेसन 19 हमारा टेस्ट पोर्शन है जो कि आएगा. सो प्लीज ऑल ऑफ यू तैयारी होकर के क्लास में आइएगा और कोशिश करिए कि आंसर गिव आंसर बाय योरसेल्फ. डोंट टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट, प्लीज डोंट ओपन योर बुक at the time of test. Okay, and I will provide you the right answer. I will provide you the right answer. Now let the all other students enter in the class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Open your copy. Those who have joined the class at this very moment, please open your copy and write a topic given on the board. Put date the left side of your copy. Put date on the left side of your copy and write topic MCQ of lesson 12. And your yesterday, tomorrow, Sunday test portion is lesson 19. And tomorrow I will take a test, revision test from lesson 19. Okay. Now start. Let us start the topic.
यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। At that time when Muhammad Ghori, yes children, what is the problem? Not my voice. I'm now Hello? audible. And now Hello? your voice is coming. मेरी आवाज जा रही है कि नहीं आप? Yes, ma'am, your voice is आपकी Yes आवाज or no? कट के आ रही है। नहीं आ रही है। Are you getting my voice or not? मैम रुक रुक के आ रही है। है। अब बताइए, आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Yes. Yes, now start. Name the Turkish ruler who had not a child of his own. Name the Turkish ruler. This is question number 1. Name the Turkish ruler who had not a child of his own. Ma'am, please repeat the question. Name the Turkish ruler who had not a child of his own. Name the Turkish ruler who had not a child of his own. Ma'am, second question, ma'am. Question number 2. Name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. Name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. Name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. Ma'am, repeat the second question, please. Name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. Name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसका आंसर बुक से ढूंढ करके सारे लोग लिखेंगे, इसका आंसर हम बोलेंगे, फिर मिलाएंगे आप लोग। What were the main cause of the defeat of the Indian rulers? What were the main cause of the defeat of the Indian rulers? What was the main cause of the defeat of the Indian ruler? मैम, मुझे आंसर मिल गया। जिनको मिल गया लिख लीजिए। मैम, एक और बार बोल दीजिए ना प्लीज। क्वेश्चन बोल रहे हैं, what was the main cause of the defeat of the Indian rulers? What was the main cause of the defeat of the Indian rulers? मैम, इसका आंसर पॉइंट्स में लिखना है। आप किसी भी तरह से लिखिए, हम बताएंगे आपको कि आप क्या लिखे, हम आंसर बोलेंगे, उससे आप अपने पॉइंट को जिस तरह से भी लिखने आ रहा है आप लिखिए उसको।
यू राइट इट। आपके पास आपका बुक भी है, ऐसा आंसर भी कर आपके पास है। हाँ बताए, जो जैसे आपको समझ में आ रहा है आप लिखिए उसको। What was the main cause of the defeat of the Indian rulers? What was the main cause of the defeat of the Indian rulers? Ma'am, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबका एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके बाद फोर्थ जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। द कॉमन पीपल वेयर डैश एज दे हैड नो कॉन्टेक्ट विद द रूलर्स। द कॉमन पीपल वेयर डैश एज दे हैड नो कॉन्टेक्ट विद द रूलर्स। Ma'am, please repeat. The common people were dash as they had no contact with the rulers. The common people were dash as they had no contact with the rulers. हाँ हो गया। Next question. Ma'am, next question. Question number 5 लिखिए। Name the king of Gujarat who defeated Muhammad Ghori. Name the king of Gujarat who defeated Muhammad Ghori. Ma'am, please repeat this question. Name the king of Gujarat who defeated Muhammad Ghori. मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हम बोल नहीं रहे हैं, अभी अब मेरी आवाज गई कि नहीं आप तक? विवेक, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ, उसमें Yes, हम ma'am. बोल नहीं रहे थे, हम आई वॉज वेटिंग, उसमें हम नहीं Ma'am, बोल रहे थे। मैम क्वेश्चन का उस टाइम आपका आवाज बहुत रुक गया था। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर अभी मिल गया? अभी मिल गया कि क्वेश्चन को रिपीट कर दूं? रिपीट कर दीजिए मैम। नेम द किंग ऑफ गुजरात हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी। नेम द किंग ऑफ गुजरात हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी। मैम हो गया। हो गया। नाउ वी हैव डन द 5 क्वेश्चंस। तो नेम द Turkish ruler who did not have a child of his own. Answer is Muhammad Ghori. Answer is Muhammad Ghori. फर्स्ट का होगा मोहम्मद गोरी। फर्स्ट का मोहम्मद गोरी होगा। हम आंसर को बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट का होगा मोहम्मद गोरी। This is the first answer. Second question is, name the trusted slave and general of Muhammad Ghori. Number 2, Kutubuddin Aibak. बहुत बढ़िया। Q-U-T-U-B-U Aibak. क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 थोड़ा लंबा आंसर होगा। What was the main cause of the defeat of the Indian ruler? इसका सिंपली आंसर है, किसी ने पूछा था पॉइंट में होगा कि नहीं होगा। द डिसयूनिटी
disunity The disunity among among Indian rulers and the caste system was the Indian- main cause. yes, rulers and the caste system. Caste system in Indian society. कास्ट सिस्टम कहाँ था? इंडिया के समाज में था. इंडियन was the main cause of the defeat of the Indian rulers. ये जो है आपका क्वेश्चन ये आएगा, ये समझ लीजिए, ये दिया भी हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आपका इसमें पॉइंट और आएगा, लेकिन अभी जो है आपको 2 ही पॉइंट मैंने दिया. अभी आगे भी इसका देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, लिस्ट द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स. आप पेज नंबर 94 में जाइए, E4 को देखिए, E4 को देखिए, तो इसमें और भी पॉइंट आएगा. एक ये मेन कॉज हम लोगों ने अपना सिंपली दे दिया, ठीक है. जब और भी उसका पॉइंट आएगा आप लोग को पीडीएफ में हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मेन कॉज में एक ये इससे इतना में आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. इट वाज द मेन कॉज. ओके, समझ में आया और नहीं आया? यस और नो? हाँ, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा. लिस्ट का मतलब है कि और ज्यादा पॉइंट. ये हो सकता है बाद में कोई बच्चा हमसे, आप लोग में से पूछे कि मैम उस दिन तो आप ये बताई थी, आज ये बता रही हैं, तो मेन कॉज में इतना ठीक है ना, मेन कॉज यही था. उसके बाद बाकी और भी सारा पॉइंट उसमें आएगा, जो जैसे दिया हुआ है ना, द कॉमन पीपल वेयर डिससैटिस्फाइड. ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको लोगों को हम दिए थे, तो वो होगा डिससैटिस्फाइड. King Bhimdev. क्या बोले मैम संधि टेस्ट को कौन सा Yes. चैप्टर आएगा? 19, चैप्टर 19. ये मैंने बताया अभी आप लोगों को, जब क्लास स्टार्ट हुआ उसी में बताया, तो आप शायद सुने नहीं, तो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, स्नैप होमवर्क भी देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ क्लास ग्रुप में हम डाल ही देंगे. ठीक है, ओके. ओके मैम, फोर्थ का होगा डिससैटिस्फाइड. डिससैटिस्फाइड, हाँ, फोर्थ का आंसर होगा डिससैटिस्फाइड. मैम फोर्थ में हम द अनसेटिस्फाइड कॉमन पीपल वेयर डिससैटिस्फाइड ही. डिससैटिस्फाइड. और उसके बाद नेम द किंग ऑफ गुजरात हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, राइट आंसर, किंग भीमदेव. किंग भीमदेव, बहुत बढ़िया. आंसर क्लियर हो गया सबका? यस मैम. नाउ नाउ अब हम लोग फिर Yes, से ma'am. शुरू करेंगे. मैम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से ये क्वेश्चन नंबर 6 है. नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर. We will start from question number 1. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे. Anyone has problem? नो मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. नो मैम. नो Okay. मैम. Now let us start. हाँ, अगला स्टार्ट करते हैं. अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में चले जाइए, पेज नंबर 93. पेज नंबर 93. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट मुस्लिम इन, हाँ कॉपी में, मतलब ABC करके भी आप लिख सकते हैं, उस आंसर को हम लोग मैच करेंगे. आप पहले अपने बुक के टेक द हेल्प फ्रॉम योर बुक एंड राइट द करेक्ट आंसर इन योर कॉपी. टेक द हेल्प फ्रॉम योर बुक एंड राइट द करेक्ट आंसर इन योर कॉपी.
then I will provide you the answer. Okay. I am just repeating the question. The first Muslim invasion in India was led by. आप उसमें A B कुछ भी लिख सकते हैं अपने बुक को. Ma'am, your voice is not coming. We're going to follow the मैम आप हम लोग को टॉपिक लिखवाती हैं एमसीक्यू पर आप क्या करते हैं? शशांक ने क्या कहा है, चैट किया है. मैम आप हमेशा टॉपिक लिखवाती हैं एमसीक्यू पर, आप लिखवाती हैं वन वर्ड आंसर. एमसीक्यू और वन वर्ड आंसर में तो आखिरकार वन वर्ड आंसर क्या है? एक ऑप्शन मान लीजिए कि हम ठीक है, हम उतना आप लोग को आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वन वर्ड आंसर तो वही होता है ना. एमसीक्यू में बहुत सारा आंसर दे करके एक चुन लिया जाता है. ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यू बोलने लगे तो 2-3 से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए इसको अब इसका तो एमसीक्यू भी बन ही जाएगा, हम बना ही देंगे जब आप लोगों से टेस्ट लेंगे तो ट्राई वन वर्ड आंसर से ही, इसी से एमसीक्यू बनेगा. ओके, आप उसमें बहुत सारा आंसर दे सकते हैं. ठीक है, आपका चैटिंग और क्वेरी ठीक है कि टॉपिक लिखवाती है एमसीक्यू, लेकिन आप दे देती हैं वन वर्ड आंसर. तो वन वर्ड आंसर में मान लीजिए कि एमसीक्यू का आंसर तो लास्ट में वन वर्ड ही आता है. जैसे मान लीजिए द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज लेड बाय महमूद ऑफ गजनी, महमूद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक. तो हम आपको सीधा डायरेक्ट अगर आंसर दे देते हैं, उसका 3 ऑप्शन आपको जब भी मिलेगा तो आप राइट आंसर लिख लेंगे. तो वन वर्ड में हम इसलिए प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोग. दैट्स व्हाई हम आप लोगों को वन वर्ड में प्रैक्टिस करवा देते हैं. ठीक है, शशांक शेखर, यस और नो? आई वांट योर रिस्पॉन्स. शशांक शेखर. ओके शशांक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. योर क्वेरी वाज वेरी गुड. हो गया सबका? नाउ अब वन से आंसर मैच करेंगे. द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज लेड बाय ए महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, ए महमूद ऑफ गजनी. अब उसके बाद महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया मेनली. डी होगा इसका टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया. यस, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया. उसके बाद है हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. एक कल के क्लास में हम लोगों ने शशांक शेखर, देखो ये एमसीक्यू में तुमको दिया है. कल हमने वन वर्ड में तुम लोगों को करा दिया था हु डिफीटेड हुम. एक साथ 2 क्वेश्चन करा दिया. हु डिफीटेड हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. अब याद आ रहा है शशांक शेखर? पृथ्वीराज चौहान. नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग were the first to bring Islam to India? Turks. Yes, Turks. Yes. उसके बाद the trusted slave and general appointed as a deputy of Indian territory by Muhammad Ghori was Qutubuddin Aibak. Yes, Qutubuddin Aibak. बहुत बढ़िया. हो गया सबका? या रिपीट करना आंसर को? नो मैम. नो मैम, थर्ड का कर दीजिए. क्वेश्चन 2 में किसका कर मैम दे? टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया नहीं होगा. मैम फोर्थ का. फोर्थ का Who मैम, among the question following? टू मैम, का क्या? मैम उसमें टू स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया नहीं होगा. महमूद ऑफ गजनी यस मैम. स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया किया था कि टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया. मैम यहाँ पे अटैक द वेल्थ ऑफ इंडिया. नो मैम, तो डी कुछ- आंसर होगा. कुछ जो है हिस्टोरियंस ने कहा कि वो उसका मेन एम था, लेकिन ज्यादातर तो वो लूटपाट किया, उसको तो प्लंडरर माना जाता है हम लोग के यहाँ. और मैम क्वेश्चन में भी दिया गया है महमूद ऑफ इंडिया मेनली.
हाँ मेनली कह रहा है, तो वो तो प्लंडर करने के लिए आया था, क्योंकि वो बहुत गजनी जो है बहुत गरीब जगह का था, वो मतलब एक गरीब अफगानिस्तान का एक बहुत पुअर ये था, स्टेट था, समझ में आया। इसलिए यहाँ पर टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, इसीलिए वो आता था धन लूट करके चला जाता था। लेकिन एक था कि इस्लाम तो वो प्रोपागेट किया ही, ये भी सही है, लेकिन अभी पहला उसका मेन एम था प्लंडर करना। नेक्स्ट है, किसी का और कोई क्वेरी है अबाउट द एमसीक्यू? सबका कंप्लीट हो गया। नाउ कम फिल इन द ब्लैंक्स। वॉर्स अमॉन्ग राजपूत्स रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। फर्स्ट में राजपूत, हाँ, war among Rajputs. Resulted in political instability. Number 2, Turks were recruited as guards and professional Protectional soldiers. दोनों होगा, गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स, यहाँ दोनों भराए। मैम फर्स्ट और सेकंड का एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क चली गया था मेरा। इसका फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यू का प्रोफेशनल सोल्जर। यस बोलिए, एमसीक्यू का करेंगे। नो मैम, फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट में फिल इन द राजपूत ब्लैंक्स होगा, का। अब फर्स्ट में राजपूत होगा, सेकंड तो अभी हम लोग कर ही रहे थे, गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। यस मैम। हो गया? यस मैम। Yes. Ghazni most destructive attack was on Somnath temple in Gujarat. 1025 Somnath temple in 1025 CE। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरा एक Yes. क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, क्या मैम क्वेश्चन? सेकंड ब्लैंक जो है 3 में, मैम उसमें गुजरात भी तो फिल हो सकता है। कहाँ पर? Yes मैम। मैम मैम थर्ड का क्या है? Ghazni most Somnath destructive temple in attack was 10,025 on Somnath temple in, हाँ बोलो अब क्या? 1025 CE। क्या बोल रही थी? मैम यहाँ गुजरात भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैम सोमनाथ टेम्पल गुजरात में था। मैम नहीं, सेकंड गुजरात ब्लैंक में सेकंड ब्लैक में नहीं, इन गुजरात नहीं होगा। इन किस ईयर में किया था सबसे ज्यादा, यहाँ पर वो होगा। पेज में दिया हुआ लाइन। ओके मैम। ठीक है, 25 कॉमन है। देखो यहाँ पे दिया भी यही है, डायरेक्टेड डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, यहाँ पर दे रहा है अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE। तो यहाँ पर इन गुजरात नहीं होगा, यहाँ पर ठीक है, ईयर लिखना है। मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन गुजरात। तो ये तो पृथ्वीराज चौहान होगा यहाँ पे। मैम यस किंग, हम भीमदेव लिखे। हाँ वही लिखिए, वही होगा, हम जानते हैं वही होगा। मैम किंग भीमदेव लिखे कि सिर्फ भीमदेव लिखे? दोनों में से जो भी लिख सकते हैं। मैम किंग भीमदेव ना। हाँ, किंग भीमदेव या भीमदेव जो भी लिखेंगे सब सही होगा, क्योंकि नाम राजा का भीमदेव ही था, किंग ने नहीं हराया था, भीमदेव नाम के किंग ने हराया था, इसलिए मेनली इट वाज भीमदेव। ठीक है। इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। हाँ, कास्ट सिस्टम। मैम शेड्यूल सिस्टम भी लिख सकते सिर्फ हैं। कास्ट लिखिए ना, सिर्फ कास्ट लिखिए, कास्ट सिस्टम लिखिए। हाँ बस ओनली कास्ट सिस्टम, इसमें और कुछ नहीं। मैम सिस्टम भी लिखे? सिस्टम भी लिखना है। किसका विवेक? क्वेश्चन नंबर चैटिंग करके बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। वो पूछ रहा है का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या होगा। 2 में गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स, गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स दोनों होगा उसमें। मैम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? 5th में कास्ट सिस्टम होगा।
5th में होगा कास्ट सिस्टम। हो गया सबका? एक बार आंसर को मैच कर लीजिए। नंबर 1 में राजपूत, नंबर 2 में गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स, नंबर 3 में सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE, सोमनाथ टेम्पल इन 1025 CE, ये होगा। तो उसमें 2 ब्लैंक है 3 में। नंबर 4 में मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय भीमदेव और किंग भीमदेव, जो भी आप लिखे हैं दोनों सही है, भीमदेव जरूर होना चाहिए। इन गुजरात इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। दिस इज नाउ सी में आ जाइए, पेज नंबर है 94। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया, ट्रू फॉल्स है ये? ट्रू है। मेनी मुस्लिम सेटल इन इंडिया ड्यू टू देयर ट्रेड इंटरेस्ट। false ये ट्रू है। मैम ट्रू। ये ट्रू है। नंबर 3 है मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड इन बोथ द बैटल ऑफ तराई, ये फॉल्स है। नंबर 3 false नंबर 4 मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड कन्नौज एंड बनारस, ट्रू है। true मोहम्मद गोरी हैड three children। false बहुत बढ़िया। मैम ये क्वेश्चन आपने अभी पूछा था, ये वाला। यस, अभी कराए हैं, बहुत बढ़िया। नहीं थे। यस, नाउ डी और ई जो है इसका। हाँ यस, किसी को और कुछ पूछना है क्या? बोल रहे थे। हाँ मैम क्वेश्चन नंबर 4 से रिपीट करिए ना, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर कौन सा, किसका? सी का 4। बताओ। सी का 4 मोहम्मद गोरी नहीं मैम, कन्नौज एंड बनारस, ये तो ट्रू है। मैम ट्रू है। मैम ये ट्रू है। ये ट्रू है। नंबर 4 जो है ट्रू है। ठीक है। देखिए आप लोग जो है इसको, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे, बोले कि रिपीट करिए, तो इसका मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस तरह से आंसर लिख रहे हैं, कैसे टेस्ट दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखा है पेज नंबर 92 का, देखिए हम 3rd पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। His dreams of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kannauj. A fierce battle took place between the Muslims and the Rajputs. The power of Rajput was crushed. King Jaichand was defeated, and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Banaras. और यही आपको क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब तब इसका मतलब है कि आप लोग लेसन बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड मैम मैंने पढ़ा है। मैम मैंने तो फिर खुद से कैसे क्वेश्चन नहीं समझ आंसर भी किया है। तो फिर कैसे मैंने समझ में खुद से नहीं आया, क्वेश्चन बताइए। मैम मैंने बताया है, मैंने बताया भी है। नहीं, अभी जो इसने पूछा मैं उससे बात करूं। आई एम टॉकिंग विद दैट। जो बता रहे हैं उनके लिए नहीं पढ़ना, तो डेली होमवर्क में हम यही दे रहे हैं, लर्न द लेसन। उसके बाद भी अगर इतने कंफ्यूज रहिएगा तो फिर कैसे होगा? 2 पेज का लेसन है, इतना छोटा सा लेसन है ये लेसन इतना छोटा है कि ओनली 2 पेज, उससे ज्यादा करना है। नाउ एक कोई बच्चा हमको आंसर बताइए, व्हाट अट्रैक्टेड द तुर्क्स टू इंडिया? The great मैम wealth of India खुशी कुमारी। The great wealth Ma'am, of the India. great wealth of India attracted the Turks to India. by the Turks. And the नो great मैम गलत आंसर है, कैन आई से? हाँ बोलिए बोलिए। Ma'am, the frequent war among the Rajputs resulted in a political disunity in North India that attracted the Turks to India. सिर्फ उसी से? Ma'am, can I Ma'am, and trade interest. मैम यही आंसर है। नहीं, मैम यहाँ नहीं, पे The लिखा भी है। frequent wars among the Rajputs आपका आंसर लिखा हुआ ठीक है। The frequent war among the Rajputs and the great wealth of India, ये दोनों होगा। मैम दोनों होगा। दोनों पॉइंट होगा। Ma'am, and trade interest. ट्रेड इंटरेस्ट बाद में, ट्रेड इंटरेस्ट बाद में, बहुत सारे लोग मैम नहीं ये आए। तो स्टेट इंटरेस्ट तो सेटल होने के लिए हाँ, वहाँ पे सेटल होने के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बढ़िया। तुर्क का पूछ रहा है, ना कि मुस्लिम का।
हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैम इसका आंसर पेज It is नंबर correct or 90 not? में होगा। What is शशांक शेखर, what is right or wrong जो आप पूछ रहे हैं? शशांक शेखर, the great wealth of India attracted the troops to India. Is it correct? एक हाफ करेक्ट है, ये हम समझ गए जो आप पूछ रहे हैं। ये हाफ एक पॉलिटिकल डिसयूनिटी भी होगा या वार अमंग द राजपूत। पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ट्रूप्स इन इंडिया, ये होगा इसका आंसर, ट्रूप्स टू इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया attracted the troops to India. Is it clear? Answer. Yes, Question ma'am. number 2 बताइए, write any two main features of the troops. बताइए। बताइए, who is किसी का मैम सेकंड माइक, का आंसर बताइए क्या लिखेंगे? कोई बोल रहा था हमको, आंसर बता रहा था। Who was giving the answer? Please बोलिए। मैम सेकंड का आंसर को किसने बोला? बोलिए। मैम चेन्नई से। हाँ बोलिए। Ma'am, they have horses to war. Number 1, they have well equipped and were properly planned. Slowly took over the power and became governors of the province. टू मेन फीचर बताना है। फीचर का मतलब जो होता है, उनकी विशेषता क्या थी? फीचर का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। मैम आप पीडीएफ भेजिएगा या हम अभी ही लिख लें? पीडीएफ चला जाएगा आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले क्वेश्चन आंसर पूछ तो बताइए, इतना आप हड़बड़ाइए नहीं। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन आंसर आपको लिखना हम सिखा रहे हैं तो आप इतना हड़बड़ नहीं करिए। The main aim of invading Turk पहले was अपना इनहेंस करिए नॉलेज को। to loot the great wealth क्वेश्चन of आंसर लिखना India. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Yes, ma'am. जितना लेसन लिखना है एक दिन में अगर एक हम लोग लिखेंगे और आपको पीडीएफ दे देंगे तो 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। Ma'am, तो हमारा troops were recruited as guards and